کراچی سے خیبر تک کے اخبار میں خوش آمدید، شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ اقبال ڈے کے حوالے سے پنجاب بھر میں تقریبات کا انعقاد، سیالکوٹ میں کلام اقبال پیش کرنے کا مقابلہ، 15 کالجز کے طلباء و طالبات نے بھرپور حصہ لیا۔ سیالکوٹ میں شاعر مشرق علامہ اقبال کی رہائش گاہ خستہ حالی کا شکار، قومی ورثے میں شامل عمارت حکومتی نااہلی کی بھینٹ چڑھ گئی، مفخر پاکستان کا گھر اپنی پہچان کھونے لگا۔ چنیوٹ میں پولیس کی کارروائی، جعلی بین الاقوامی کرنسی اسمگل کرنے والا ملزم گرفتار، کروڑوں روپے کی جعلی کرنسی بھی برآمد، ملزم پنجاب کے مختلف شہروں میں جعلی کرنسی فروخت کرتا تھا۔ ساہیوال سے 2 روز قبل اغوا ہونے والے 10 سالہ بچے کی لاش بابا فرید پاک کے علاقے سے برآمد، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو میں منشیات فروشی کا دھندا عروج پر پہنچ گیا، منشیات فروشی کے لیے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی سرگرم، پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ منڈی شاہ جونا میں قبضہ مافیا سرگرم، سرکاری زمینوں پر قبضہ معمول بن گیا، اسلحے کے زور پر محنت کشوں کو بھی نہ چھوڑا، متاثرین نے کارروائی نہ کرنے پر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ چار سال سے کینسر جیسے مرض سے لڑتے لڑتے 4 سالہ عریش فاطمہ نے ہمت نہیں ہاری، لیکن جان لیوا بیماری ایک ایک پل اسے موت کی جانب دھکیل رہی ہے، معصوم کلی کی آنکھیں کسی مسیحا کے منتظر۔ شورکوٹ کینٹ میں جاری آل پنجاب ہاکی ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا، ٹورنامنٹ میں متعدد قومی کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ دادو میں وابلہ ملازمین کے ساتھ نجی طور پر کام کرنے والا نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق، ورثاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ خیرپور میں پولیس نے آپریشن کلین اپ کا آغاز کر دیا، کچے کے 5 مقامات پر پولیس کمانڈوز پہنچ گئے، قریبی علاقے بھی خالی کرا لیے گئے۔ اوباڑوں کے نواحی علاقے بیروٹا میں آل پاکستان گھوڑا ریس کا انعقاد کیا گیا، ریس میں ملک بھر سے آئے گھڑ سواروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہزاروں شائقین کی بھی شرکت۔ چمن میں ایف سی کے زیر اہتمام یوم اقبال کے موقع پر تقریب کا انعقاد، قبائلی مائدین سمیت عوام کی بڑی تعداد شریک، بچوں نے مختلف ٹیبلوز اور اقبال کے لکھے گئے نغمے پیش کیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے بحران میں مسافر کوچ بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری، حادثے کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ پشاور کے قریب ضلع چارسدہ میں پولیس نے سرچ آپریشن کرتے ہوئے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا، ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، شامل کریں گے پنجاب بھر سے خبریں۔ سیالکوٹ کے گورنمنٹ مرے کالج میں یوم اقبال کے حوالے سے طلبہ و طالبات کے مابین کلام اقبال پیش کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کلام اقبال کو ترنم سے پڑھنے کے مقابلے میں گورنمنٹ مرے کالج کے توقیر عباس نے پہلی، گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین سمبڑیال کی ماریہ اقبال نے دوسری اور گورنمنٹ حاجی پورہ گرلز کالج سیالکوٹ کی طیبہ بشیر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ مجموعی طور پر ضلع سیالکوٹ کے 15 کالجز کے طلبہ طالبات نے کلام اقبال کے مقابلے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی سی او سیالکوٹ ڈاکٹر آصف طفیل کا کہنا ہے کہ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کے پیغام
اور افکار کی پیروی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ شاعر مشرق نے مسلمانان برِ صغیر کو آزادی کی راہ دکھائی۔ ڈاکٹر آصف طفیل کا کہنا تھا کہ اقبال کے پیغام کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہونے کے لیے اس پر منوعن عمل بھی کیا جائے۔ تقریب سے کالج کے پرنسپل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اقبال جیسا باکمال بننے کے لیے نوجوانوں کو اپنی تمام تر توانائیاں اور توجہ حصول علم پر مرکوز رکھنی ہوگی۔ علامہ اقبال کے خواب کو تعبیر برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں لازوال جدوجہد کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو ملی، لیکن نہ تو علامہ اقبال کے نظریات کو فروغ دیا گیا اور نہ ہی آج کی نوجوان نسل اپنے محسن سے آشنا ہے۔ تاریخی اہمیت کی حامل اقبال منزل عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے، لیکن کئی سالوں سے اقبال منزل کی حالت وفاقی اور صوبائی گرانٹس نہ ہونے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی یکبی عمارت کو آہنی سریے کے گارڈز سے سہارا دیا گیا ہے۔ اقبال پر پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے یہاں نہ تو کوئی یونیورسٹی بنائی گئی ہے اور نہ ہی حکومت نے اقبال کے نظریات کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ لیکن فکر اقبال کو نہ تو سچی بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے کہ نہ اس کو پھیلایا گیا، نہ اس پہ بات کی گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس شہر میں اقبالیات پہ پی ایچ ڈی کی جاتی، یہاں پہ یونیورسٹی کا قیام کیا جاتا، دور دراز سے لوگ آتے، وہ اقبال پہ پی ایچ ڈی کرتے، لیکن یہاں پہ کوئی ایک ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں پہ فکر اقبال کی تدریس یا تعلیم دی جاتی ہو۔ علامہ اقبال کا سیالکوٹ میں پیدائش تو ہوئی ہے، لیکن ان علامہ اقبال کے گھر کا گورنمنٹ کو کوئی اتنا خیال نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے گھر میں جو نقصان ہو رہا ہے فرنیچر کا، اور ان کی یادگیر جو فرنیچر پڑے ہوئے ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یوم اقبال پر اقبال منزل نماز فجر کی ادائیگی اور سالگرہ کا کیک کاٹنے کے بعد کھول دی جاتی ہے اور اندرون و بیرون ممالک سے شہری یہاں آتے ہیں۔ اس کا آغاز اقبال منزل میں نماز فجر کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ علامہ اقبال کی ولادت کا جو ٹائم ہے وہ نماز فجر کا ہے۔ اس وقت نماز فجر ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد یہاں پہ کیک بھی کاٹا جاتا ہے، اس کے بعد دعائے خیر کے بعد تمام لوگ جو آئے ہوتے ہیں زائرین، ان کو گھر میں آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں اور علامہ اقبال کی تعلیمات کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیالکوٹ میں حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی رہائش کا ہستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے۔ مفکر پاکستان کا گھر اپنی پہچان کھو رہا ہے، جبکہ حکومت نے معاملے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی ہے۔ سیالکوٹ میں واقع اقبال منزل پر ویرانی نے ڈیرے ڈال لیے۔ علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد کی جانب سے تعمیر کرایا گیا گھر حکومتی نااہلی کی بھیٹ چڑھ گیا۔ پاکستان کا خواب دیکھنے والے عظیم فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کے آبائی گھر کی دیکھ بھال کا بیڑا سیالکوٹ کے مخیر حضرات نے اٹھا رکھا ہے۔ حکومت کی جانب سے مناسب انتظامات نہ ہونے پر یہاں آنے والے لوگ مایوس واپس لوٹ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کا خواب دیکھا جو بعد میں حقیقت بن گیا۔ اقبال نے جو ہمیں پیغام دیا تھا اتحاد کا، خودی کا اور مل کر رہنے کا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیغام کو جو ہے وہ عملی شکل دیں اور اس پیغام کو لے کر چلنا چاہیے۔ فکر اقبال میں وہ سب کچھ ہے جو قرآن میں ہے۔ فکر اقبال دراصل قرآن کی تشریح ہے۔ اگر ہم قرآن کی تشریح پہ چلیں اور اسلام کو نافذ کریں تو فکر اقبال خود بخود عام ہو جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عظیم ہستی کے گھر کی تزئین و آرائش کے لیے فوری خصوصی اقدامات کیے جائیں تاکہ قومی ورثے میں شامل اس عمارت کو محفوظ بنایا جا سکے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں یوم اقبال کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی جس میں مختلف اسکولوں کے بچوں نے شرکت کی۔ خانقاہ ڈوگرہ میں مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلبہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں طلبہ اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں شریک بچوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر مصور پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ملت اسلامیہ کے لیے بیش بہا خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ریلی میں شریک بچوں نے محافظ پاکستان پاک فوج کے حق میں بھی نعرے بازی کی۔ ریلی شہر کے مختلف بازاروں اور لاہور سرگودا روڈ سے ہوتی ہوئی گورنمنٹ ہائی اسکول پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی، جہاں ملک میں امن و امان کے قیام اور ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ کے الزام میں ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف ممالک کی جعلی کرنسی فروخت کرتا تھا۔ ملزم کے قبضے سے کروڑوں روپے کی مختلف ممالک کی جعلی کرنسی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزم کا تعلق لاہور سے بتایا جاتا ہے، تاہم تفتیش کے دوران مزید اہم انکشافات ہونے کا بھی امکان ہے۔
साहिवाल से 2 रोज कबल अगवा होने वाले 10 साला बच्चे की लाश बाबा फरीद पाक के इलाके से मिल गई है। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। साहिवाल की इनायत इलाही कॉलोनी से 2 रोज कबल अगवा होने वाले बच्चे की लाश बाबा फरीद पाक के इलाके में कायम निजी एजुकेशन एकेडमी से बरामद हुई। 10 साला मकतूल अरम को मुल्जिमान ने तावान के लिए अगवा किया था और तावान ना मिलने की सूरत में इसे कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वुरसा को तावान की रकम के लिए आने वाली फोन कॉल से मुल्जिमान को ट्रेस करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है और मुल्जिमान की निशानदेही पर 10 साला अरम की लाश बरामद कर ली गई है। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी है। गिरफ्तार मुल्जिमान एहसन और मुसद्दक दोनों इनायत इलाही कॉलोनी के ही रिहायशी हैं। फालिया में मामूली तल्ख कलामी पर मुखालिफिन की फायरिंग से 20 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फालिया के नवाही इलाके रुजुआ में मुखालिफिन की फायरिंग से 20 साला नौजवान नवीद कमर शदीद जख्मी हो गया है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान गली से गुजर रहा था कि पहले से घात लगाए मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। दूसरी जानिब मुल्जिमान की शदीद फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास पाया जाता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डीआईजी पुलिस भावलपुर मलिक अदरीस ने पुलिस और सिविल इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चिश्तिया के सदर मॉडल थाना में खुली कचहरी लगाई। साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल करने के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत भी जारी कर दी। चिश्तिया डीआईजी पुलिस बहावलपुर मलिक अदरीस ने पुलिस और सिविल इंतजामिया के दौरान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए चिश्तिया के सदर मॉडल थाना में खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जाहिद अकरम, डीपीओ बहावनगर लियाकत अली मलक, डीएसपी चिश्तिया शमसुद्दीन, असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया अरशद महमूद सिंधु, ताजर तंजीमों शहरियों के अलावा साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आरपीओ बहावलपुर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि पिछले चंद सालों की निस्बत पुलिस और अवाम में एतमाद का माहौल काफी हद तक बेहतर हुआ है और आने वाले दिनों में पुलिस को हिदायत जारी की है कि अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करे। खुसूसन मीडिया के हवाले से मलिक अदरीस का कहना था कि मीडिया मुआशरे की आंख और कान है। मीडिया जो मंजर आम पर लाता है वो हमारे लिए मशल रहा है। के जोर पर मेहनत कशों की जमीनों पर कब्जा मामूल बन चुका है, जबकि पुलिस भी कार्रवाई से गुरेजा है। जिला झंग की तहसील मंडी शाहजोना में बासर कब्जा माफिया सरगर्म हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी और मेहनत कशों की जमीनों पर कब्जा मामूल बन चुका है। गुज़िश्ता रोज कब्जा ग्रुप ने मेहनत कश की 20 कनाल से जायद अराजी पर कब्जा कर लिया। जमीन का मालिक सराज रवाना रास ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने सियासी असर रसूख पर उसके 20 कनाल से जायद रकबे पर कब्जा जमा रखा है। दूसरी जानिब शिकायत के बावजूद पुलिस बासर कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज कर रही है। मेरा रकबा है 20 कनाली ते 11 मरले। जनाब मैं मोल खरीदा, इस ते कब्जा कर लिया। जनाब फराज अमान वो इश्तिहारी बहा के इतने मैं धमकियां देंदे रहे ते मेरे को कब्जा खो लिया ने। हुण जनाब मैं हथड़ मुथड़ा ना हुण मेरी कोई सुनदा है। मेहनत कश ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े का नोटिस लेते हुए कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोकल गवर्नमेंट झंग के अहाते में खड़ी लाखों रुपए मालिक की कीमती गाड़ियां मुनासिब देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो गई हैं। लोकल गवर्नमेंट के अहाते में लाखों रुपए मालिक की गाड़ियां कई साल से खड़ा रहने के बाइस अब कबाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। कुछ गाड़ियां फटे या बगैर टायर के ईंटों और लकड़ियों पर खड़ी नजर आती हैं। इनमें से कुछ गाड़ियों की ज़ाहिरी हालत ये बताती है कि अगर उन्हें मुरम्मत किया जाए तो उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सकता है, लेकिन महकमे की लापरवाही के बाइस ये गाड़ियां मुसलसल धूप और बारिश में खड़ा रहने के बाइस जंग आलूद हो चुकी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इब्रार आदिल का कहना था कि एक जीप उनके महकमे की है और उसे 2001 में नाकारा करार देकर खड़ा कर दिया गया था और इसके बारे में आला हुकाम को भी लिखा जा चुका है कि इसकी नीलामी के अहकाम दिए जाएं, लेकिन ताहाल आला हुकाम की जानिब से उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना था कि दीगर तमाम गाड़ियां उनकी यहाँ तैनाती से कबल ही मौजूद थीं। ये गाड़ियां किसी महकमे की मलकियत हैं और यहाँ पर क्यों खड़ी हैं। डस्का में 14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले डीएचक्यू अस्पताल में तिबी सहूलियात के फुकदान के बाइस मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात दरपेश हैं।
डस्का का 100 बेड्स पर मुश्तमिल DHQ अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज इलाज मुआवजे की गरज से आते हैं, मगर इंतजामिया और डॉक्टरों की अदम दिलचस्पी की वजह से गरीब मरीजों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी मयसर नहीं, जबकि 4 एम्बुलेंसेज में से 2 नाकारा खड़ी हैं। लोग अपने मरीजों को रिक्शा और प्राइवेट गाड़ियों पर लाने और ले जाने पर मजबूर हैं। एम्बुलेंस सामने खलोती है लेकिन कहते नहीं ये मुयसर नहीं की, सिर्फ तगड़े बंदे वास्ते माड़े बंदे वास्ते एम्बुलेंस नहीं मुयसर। तुसी अपनी करानी पड़ेगी तानू, असीं इन्ने जोगे नहीं है। अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स जिनके अपने प्राइवेट अस्पताल हैं, मरीजों को अपने अस्पताल में इलाज कराने पर जोर देने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। गरीब मरीज उनकी भारी फीस अदा नहीं कर सकते। डॉक्टर्स की लापरवाही के बायस ज़च्चगी के दौरान कई मासूम जाने जा चुकी हैं, मगर इंतजामिया की मिलीभगत से मामले को हर बार दबा दिया जाता है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खानेवाल में सफाई सुथराई के इंतहाई नाकिस इंतजामात के बाइस कई इलाके गंदे पानी के जौहर बन चुके हैं, जिसके बाइस अवाम को मुश्किलात दरपेश हैं। खानेवाल के मेन बाजार, मीनार मस्जिद, चौक की सड़कें सीवरेज का पानी खड़ा होने से जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। शहरियों का कहना है कि इलाके में ताफुन फैल रहा है, जिसके बाइस बच्चे बड़े मूजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। उनका कहना है कि TMA को बारहा शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। सिरापा एहतजाज शहरियों ने धमकी दी कि अगर गंदा पानी 24 घंटे में ना निकाला गया तो इनके एहतजाज का दायरा वसी हो जाएगा। इतनी गंदगी है यहाँ पर, सेवरेज बंद है और यहाँ गर्द आलूद उड़ती है, ना कोई अमला आता है ना कोई ऑफिसर आके चेक करता है, क्योंकि सांस की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं काफ़ी लोग। जब भी TMO के पास जाते हैं कि कोई इस पे अमल नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ना कोई सफाई है, ना कोई और आता है, ना हमारी कोई बात सुनता है यहाँ पे। शहरियों और ताजिरों ने वजीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से इस मामला पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर नोटिस ना लिया गया तो धरना दिया जाएगा। के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं। शहरी मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो रही हैं। मजीद जानने के लिए देखते हैं एजाज तरीन की रिपोर्ट। मुल्तान शहर में जगह जगह गंदगी के ढेरों ने शहरियों को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला करने के साथ साथ ज़हनी मरीज भी बना दिया है। जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी का मुंह चिढ़ा रहे हैं। शहर के अक्सर मकामात पर अमला सफाई नजर ही नहीं आता। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खामोश तमाशाई बनकर शहरियों की बेबसी का मजाक उड़ा रही है। बिलाखिर जिला इंतजामिया को शहरियों पर तरस आ ही गया और DCO मुल्तान नादिर चट्टा और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन राना इजाज नून ने मुल्तान शहर का दौरा किया, जहां जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर इनका मुंह चिढ़ा रहे थे। DCO मुल्तान नादिर चट्टा का कहना है कि हम MD से और कंपनी से इस सैटरडे को पूछें कि उस जगहों पे सफाई का क्या निज़ाम है, कितने अरसे से सफाई नहीं हुई। आज हमारे विजिट का ये मकसद है। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन रुकन सूबाई असेंबली राना एजाज नून ने यकीन दहानी कराई कि वो मुल्तान शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाकर दम लेंगे। ये शहर आपका और हमारा है, हमने यहाँ पे रहना है। ये जो वेस्ट मैनेजमेंट का ये जो है दफ्तर है, इसका जो अमला है, इसका जो एक तरीका कार है, उसको काम करना चाहिए। DCO मुल्तान नादिर चट्टा और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन राना इजाज नून के दावे कहां तक साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन फयाज वागा के साथ इजाज तरीन, वक्त न्यूज, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 11 नवंबर को सांगला हिल पहुंचेंगे और सांगला इंटरचेंज का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर चौधरी मोहम्मद हरजीज ताहिर ने सांगला इंटरचेंज पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ 11 नवंबर को सांगला इंटरचेंज का इफ्तिताह करेंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां उरूज पर हैं। उन्होंने कहा कि सांगला इंटरचेंज गेम चेंजर मंसूबा है जो मुल्की मईशत की बेहतरी और तरक्की के साथ साथ CPEC मंसूबे तक जिला ननकाना के अवाम को रसाई फराहम करेगा। इलाके के अवाम को सेहत और तालीम की तरक्की के मौके फराहम होंगे। वफाकी वजीर का कहना था कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए हमारे इलाके को इंटरचेंज देकर तरक्की की दौड़ में शामिल किया है।
मुल्तान में नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि इनकी सदारत मुस्लिम उम्मा के लिए मसाइल खड़े करेगी। मुल्तान पीरा गायब रोड पर सैकड़ों शहरियों ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के दुश्मन हैं, उन्हें मुस्लिम दुश्मनी तर्क करके मुसावी बुनियादों पर तमाम मज़ाहिब और ममालिक से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। उनका कहना था कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और रवादारी का मजहब है, मुसलमानों का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका ने दुनिया का अमन तबाह करने और मुसलमानों का जो कत्लेआम शुरू कर रखा है, इसे बंद करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात के सिलसिले में डोबा टेक सिंह की मकामी कोर्ट में केक काटा गया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद नवाज ने दीगर जजेस के हमरा शिरकत की। डोबा टेक सिंह लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला तकरीबात के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मोहम्मद नवाज ने सेशन कोर्ट में केक काटा। इस मौका पर सीनियर सिविल जज सजावल खान, मोहम्मद अली गुज्जर, साबर हुसैन दाहर, राना सुहेल रियाज और वसीम अहमद समेत दीगर जजेस, वकला और कोर्ट स्टाफ ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए सेशन जज चौधरी मोहम्मद नवाज ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर टोबा में तकरीबात को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, जिसके तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तकरीबात 1 नवंबर से जारी हैं, तो आज की ये तकरीब भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है ताकि अवाम को ये शऊर दिया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि लाहौर हाई कोर्ट जो सूबे का सबसे बड़ा इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है, उसने अब तक जो 150 साल जो किस तरह उन्होंने ये तरक्की की मंजिलें तय की और यहाँ पहुँचे। तकरीब के इख्तिताम पर जजेस ने मुल्क की सलामती के लिए का जहां 4 साल से कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से लड़ते लड़ते 4 साला अरीज फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी। खतरनाक मर्ज से बहादुरी के साथ लड़ने वाली इस मासूम कली की आंखें किसी मसीहा की मुंतजिर हैं। वो जिंदा रहना चाहती है, लेकिन जानलेवा बीमारी एक एक पल उसे मौत की जानिब धकेल रही है। मजीद जानेंगे जावेद चौधरी की रिपोर्ट। 4 साल से कैंसर जैसे खतरनाक मर्ज से लड़ते लड़ते 5 साला अरीज फातिमा ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे पास पैसे नहीं है, मगर बेटी की बीमारी और गुर्बत से जंग करते करते वालिदैन के नातमा कंधे मासूम बेटी की बीमारी का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे। मेहनत मजदूरी करके माँ और बाप दोनों ही अरीज फातिमा का इलाज कराते हैं। कमर के फोड़े ने मासूम की टांगे और निचला धड़ नाकारा कर दिया है, जिसके बाद ये नन्ही परी माजूरी की जिंदगी गुजार रही है। अरीज फातिमा पढ़ना चाहती है, मगर बीमारी और घर के हालात इजाजत ही नहीं दे रहे। जहां ये नन्ही परी इस कर्ब का शिकार है, वहीं इसके वालिदैन भी अपनी बच्ची के दर्द को बर्दाश्त करते करते थक चुके हैं। तो इलाज बस गुर्बत की वजह से नहीं हो रहा, पैसे हो तो डॉक्टर इलाज भी कर सकते हैं। घर में बीमारी ने डेरे डाल रखे हैं और वसाइल ना होने की वजह से मायूसी छा रही है। खतरनाक मर्ज से बहादुरी के साथ लड़ने वाली इस मासूम कली की आंखें किसी मसीहा की मुंतजर हैं। शायद इसकी जिंदगी की बहारें लौट आएं और वो अपने पांव पे चल सके। बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन इस घर की रहमत खुद किसी मसीहा की मुंतजर है। कैमरामैन इम्तियाज अहमद के साथ जावेद चौधरी, वक्त न्यूज, रहीम यार खान। टोबा टेक सिंह में सालाना म्यूजिकल गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने खूब रंग जमाए और हाजरीन को महसूस किया। म्यूजिकल कॉन्सर्ट को आवाम की बड़ी तादाद ने देखा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह के एक निजी कॉलेज में सालाना म्यूजिकल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा कॉलेज स्टाफ ने शिरकत की। शो में तुलबा ने टैबलोज और मज़ाहिया खाके पेश किए, जिसे शुरका ने बेहद पसंद किया। तुझे नकाब शुरू करो बाबा जी। कुड़ी दा ना की मैं बच्चा, बेटा नाम है रोजी। कुड़ी ने नकाब कबूल भूला, नकाब होवे ना होवे हुनी तलाक ही है। म्यूजिकल शो में मुकामी फनकारों मुनीर मंजर और जॉन नेपोलियन ने अपने फन का जबरदस्त मुजाहरा किया। म्यूजिकल शो के इख्तिताम पर कॉलेज के होनहार तलबा में मेहमान खुसूसी रुकने सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद रफीक, समाजी वर्कर मियाँ नियाज अहमद और अंजमन ताजरान के सदर फयाज अहमद ने शील्ड तकसीम की। कैमरामैन मोहम्मद कासम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह।
टोबा टेक सिंह में लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तकरीबात के सिलसिले में दोस्ताना क्रिकेट मैच में वुकला 11 ने जजेस 11 को शिकस्त दे दी। जीतने वाली टीम में ट्रॉफी और इनामात भी तकसीम किए गए। टोबा टेक सिंह लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल तकरीबात के सिलसिला में स्पोर्ट्स स्टेडियम में दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। जजेस 11 की जानब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया और मुकर्रर 10 ओवर्स में 99 रन बनाए गए। हदफ के ताकब में वुकला ने भरपूर तरीके से अपनी इनिंग्स का आगाज किया और 5 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर स्कोर पूरा किया। वुकला की जानब से डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मियां फरख इकबाल ने अपनी टीम की क़यादत की। सारी एक्टिविटी जो है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट की 150 साल जो तकरीबात हैं उस सिलसिले में ये मरकत की जा रही हैं। आज का मैच भी ये उसी सिलसिले की कड़ी था। एक फ्रेंडली मैच था और फ्रेंडली मैच में हमने अच्छे माहौल में बहुत अच्छी गेम की हमने और हम जीत गए। जजेस की गेम भी बहुत अच्छी थी, 100 स्कोर करना बहुत ज्यादा स्कोर था इनका। इस मौका पर सिविल जज साबर हुसैन डाहर और नईम अफजल फराज की जानब से बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया गया। मैच के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी मोहम्मद नवाज, अजाज अहमद एडवोकेट और आमद नदीम सिद्धू एडवोकेट ने बेहतरीन खिलाड़ियों में इनामत तकसीम किए। शोरकोट कैंट में जारी ऑल पंजाब हॉकी टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। टूर्नामेंट में मुतादिद कौमी खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। शोरकोट कैंट में ऑल पंजाब हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें 10 टीमों ने शिरकत की। हॉकी टूर्नामेंट में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की कई कौमी खिलाड़ी भी शरीक हुए। सेमीफाइनल मुकाबलों में समंदरी ने शोरकोट कैंट को पेनल्टी स्ट्रोक पर 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पीर महल के कमालिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। टूर्नामेंट के फाइनल में समंदरी ने पीर महल को पेनल्टी स्ट्रोक पर 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर विनर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट में शरीक पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर अमजद अली का कहना था कि हॉकी जैसे खेल के फरोग के लिए छोटे शहरों में भी ऑस्ट्रोट्रिफ और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। और अब शामिल किए जाएंगी सन भर से खबरें। दादू में वापडा मुलाजिमीन के साथ निजी तौर पर काम करने वाला नौजवान करंट लगने से जाँ बहक हो गया। वुरसा ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। दादू के इलाके नजम कॉलोनी में वापडा मुलाजिमीन के हमरा निजी तौर पर काम करने वाला नौजवान मिंठार लोन 11,000 केवी के तारों की मुरम्मत कर रहा था कि अचानक बिजली आ गई, जिसके बाद करंट लगने से वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी लाश दादू सिविल अस्पताल लाई गई, जहां वुरसा में कोहराम मच गया, जबकि अस्पताल में वापडा मुलाजिमीन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर जाँ बहक होने वाले नौजवान के वुरसा ने मीडिया को बताया कि नौजवान वापडा मुलाजिमीन के निजी तौर पर काम करता है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करते हुए इसे पोल पर चढ़ाया गया, जबकि दफ्तर में मौजूद अमले ने भी गफलत का मुजाहरा किया। उन्होंने बताया कि नौजवान घरों का वाहिद कफील था। चीफ स्पीको सखर समेत दीगर हुकाम से नोटिस लें और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मकामात पर पुलिस कमांडोज पहुंच चुके हैं, जबकि करीबी इलाके भी खाली करा लिए गए हैं। पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसएसपी खैरपुर ने बताया कि जिला भर में ऑपरेशन क्लीनअप शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन के लिए कच्चे के 5 मकामात पर 3 से ज्यादा कमांडोज बिठाए गए हैं। उनका कहना था कि ऑपरेशन क्लीनअप में सखर, खैरपुर और शिकारपुर पुलिस इज्तिमाई तौर पर हिस्सा लेगी। उनका कहना था कि ऑपरेशन डाकुओं के खात्मे तक जारी रहेगा। एसएसपी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस की छापामार टीमों ने मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 5 मुलजिमों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 24 तोले सोना, 5 लाख कैश और 4 अदद मसरूका मोटरसाइकिल्स और असलहा भी बरामद किया है। जैकबाबाद में पुलिस एहलकार के साथ हाथापाई के इल्जाम में जेरे हिरासत शख्स के साथियों ने पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया है। 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। जैकबाबाद थाना सिटी की पुलिस के मुताबिक टावर रोड पर तैनात पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल सवार न्याज जखरानी को मोटरसाइकिल खड़ी करने पर मना किया, जिसके बाइस मोटरसाइकिल सवार और पुलिस एहलकार में हाथापाई हुई। मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार करके टावर चौकी पर लॉकअप किया गया, जिस पर सपाफ रहनुमा दीदार चक्रानी ने एक पुलिस कांस्टेबल महबूब अली जकरानी के हमरा पुलिस चौकी पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में चौकी इंचार्ज समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। एहलकार मुराद गोला की मुद्दत में पुलिस कांस्टेबल सपाफ रहनुमा और हाथापाई के बाइस जेर हिरासत शख्स के खिलाफ पुलिस चौकी और एहलकारों पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस सिलसिले में टावर चौकी के इंचार्ज आफ्ताब तरीन का कहना था कि टावर रोड पर रश होने की वजह से ड्यूटी पर तैनात एहलकार मुराद गोला ने नियाज जकरानी को मोटरसाइकिल खड़ी करने से सिर्फ मना किया था।
एंटी करप्शन की टीम ने महकमा ट्रांसपोर्ट दादू के दफ्तर पर छापा मारकर क्लर्क को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। दादू एंटी करप्शन टीम और सेकंड सिविल जज दादू गुल मोहम्मद बरोही ने अवामी शिकायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट के दफ्तर पर छापा मारकर रिश्वत लेते हुए क्लर्क रियाज पेनहोर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हवालात में बंद कर दिया गया है। इस मौके पर एंटी करप्शन टीम के सर्कल इंचार्ज गुलाम अली बोजदार ने मीडिया को बताया कि ट्रांसपोर्टर गुलाम हैदर की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी कि महकमा ट्रांसपोर्ट का एक क्लर्क जायज काम पर 8,000 रुपए रिश्वत ले रहा है, जिसके बाद छापा मारकर मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में इंसानी हकूक से मुताल्लिक एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वुकला और सिविल सोसाइटी समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हैदराबाद के मकामी होटल में इंसानी हुकूक के हवाले से निजी फलाही तंजीम की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वकला और सिविल सोसाइटी के अलावा दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि इंसानी हुकूक का मतलब बनिए नू इंसान कहलाने वाले फर्द की आज़ादी और हुकूक हैं। उनका कहना था कि हमारी NGO मुआशरे में तबाहाल इंसानों को उनके हुकूक दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुकर्ररीन का कहना था कि अगर शहरियों को उनके हुकूक फराहम कर दिए जाएं तो मजीद बेहतर अंदाज में जिंदगी गुजार सकते हैं। ह्यूमन राइट्स की हमने बातें कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करें ताकि हमारी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज आए। खासतौर पर फीमेल्स को जो है उनको मुआशरे में बेहतर से बेहतर मुकाम मिलने में हासिल करने में आसानी हो। ह्यूमन राइट्स बेसिकली बीइंग ह्यूमन हमें पहले दिन से मिल जाते हैं, लेकिन राइट्स के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जब तक आप उन्हें पहचानते नहीं हैं, उनको क्लेम नहीं करते हैं, आप उन्हें हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें ये भी पता चला कि हम अफसरान के साथ किस तरह से एप्लीकेशन लिख के और किस तरह से आम लोगों की जो है मदद कर सकते हैं। सेमिनार में शरीक मुकर्ररीन का कहना था कि इंसानी हुकूक के हवाले से लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में सेमिनार्स का इनेकाद किया जा रहा है। सेमिनार में कोशिश की जाती है कि लोगों को उनके हुकूक के हवाले से ज्यादा आगाही फराहम की जाए। पंजाब और सिंध की सरहद पर वाक़े जिला ओबाड़ो में ऑल पाकिस्तान घुड़ रेस का इनेकाद किया गया। रेस में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से घुड़सवारों ने शिरकत की। कांटेदार मुकाबले के बाद शहजोर नामी घोड़े ने सबको पीछे छोड़कर टाइटल अपने नाम कर लिया। ओबाड़ो के नवाही इलाके बेरोटा में ऑल पाकिस्तान घोड़ा रेस का इनेकाद किया गया। रेस में मुल्क भर से आए घुड़सवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। घोड़ा रेस देखने के लिए दूर दराज के देहातों से भी हजारों शायकीन ने शिरकत की। मेले में शरीक अफराद का कहना था कि घोड़ा सवारी सिंध का सकाफती खेल है जो अब दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है और अच्छी नस्ल के घोड़े भी नायाब होते जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि इस तरह के मेले मुनक्किद होने चाहिए। इससे न सिर्फ सकाफत जिंदा रहती है बल्कि देहातों में कारोबार के मौके भी मैसर आते हैं। लाखों लोग आते हैं इधर तफरी के लिए, 8-10 दिन पहले आते हैं। कुल सारी सिंध चारों सूबों के सरदार आते हैं। सारा जो है हमारा आयोग ये फी सबीला होता है, कोई खर्चा नहीं होता। मेला करवा के अवेयरनेस करते हैं जैसे इस शौक को जोर और शोर से बरकरार रखा जाए। खाने पीने सब चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने के लिए। ठीक है, रेगिस्तान भी है, दड़े भी हैं और घोड़े भाग रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। घोड़ा रेस में 43 जोड़ों ने हिस्सा लिया। रेस में जीतने वाले घोड़े के मालिक और सवार को ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से अजरक और शील्ड दी गई, जबकि मेले में शरीक अफराद की जानिब से घुड़सवार को नकद इनाम के साथ साथ खूब दाद भी दी गई। मुंतजमीन का कहना था कि हर साल मेले का इनेकाद किया जाता है जिसमें मुल्क भर से घुड़सवार शिरकत करते हैं। और यहाँ खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। बलूचिस्तान के सरहदी शहर चमन में FC के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें FC अफसरान और कबायली अमायदीन समेत आवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। यौम इकबाल की मुनासिबत से FC स्कूल में FC चमन स्काउट कर्नल मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में सियासी और कबायली रहनुमाओं, डिप्टी कमिश्नर और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलोज और इकबाल के लिखे गए नगमे पेश किए, जिनसे हाजिरीन खूब महजूज हुए। इस मौके पर कर्नल उस्मान ने अपने खिताब में कहा कि तब तक हम इकबाल को नहीं समझ सकते जब तक हम उनके अफकार और अज़कार को न समझते। उनका कहना था कि
علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی آبیاری کی، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ خیبر پختونخوا سے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے بحران میں مسافر کوچ ڈرائیور سے بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ اس حادثے کے نتیجے میں 11 افراد جاں بحق اور 15 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایفار درندازہ کے علاقے بحران میں مسافر کوچ کے گہرے کھائی میں گرنے سے 11 افراد جاں بحق جبکہ 15 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق مسافر کوچ کے بریک فیل ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں وہ کھائی میں جا گری۔ پولیٹیکل انتظامیہ نے واقعے میں 11 افراد کے جاں بحق جبکہ متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زخمیوں اور لاشوں کو داراز زندہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں زخمی افراد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہیں۔ وقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے رہیے وقت کے ساتھ۔